Very good afternoon, class. We are going to learn financial management. Financial management, in which we have learned yesterday the types of capital. In which yesterday we have learned the types of capital, types of shares. Here there are two types of shares, that is equity shares, and another one is preference share. Preference share. Okay. Yesterday in the last lecture we have learned about the different types of equity share. Now today we will see the different types of preference share and what is the meaning of preference share, what are its features. It is very important to know about the meaning of preference share. Preference share. So students, today we will learn about the meaning of preference share and the features of preference share. Now what is the meaning of preference share? Preference share capital is a capital that is generated by the company by issuing preference stock. What is preference share? Preference shares are share in a share capital of the company, but here company issue preference stock to the public, where company issues a preference shares to the public. Now preference shares is one which carries the following right. प्रेफरेंस इसका नाम ही है, क्या है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर तरीके से हर चीज़ के लिए प्राथमिकता दी जाती है, प्रेफरेंस दिया जाता है कि कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो या कोई भी बेनिफिट्स हो तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंसिस्ट टू राइट्स. Preference shareholder consists two rights. First of all, they have fixed rate of dividend. ठीक है, जैसे इक्विटी शेयर्स में हमने कल देखा था, इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में डिविडेंड दिया जाता है, बट ऐसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए नहीं होता है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले दिया जाता है, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है किस चीज़ के लिए? प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए. डिविडेंड मीन्स रिटर्न ऑन दी शेयर्स. डिविडेंड क्या होता है? शेयर्स पर रिटर्न होता है कोई भी इन्वेस्टर के लिए, और उनका रेट ऑफ फिक्स रेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, प्रेफरेंस शेयर इशूड एट 15%. तो कंपनी में प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो कंपनी में, लेकिन 15% ऑफ डिविडेंड विल बी इशूड टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर. ओके. नाउ नेक्स्ट राइट इज, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट. पहला है उन्हें राइट टू डिविडेंड, जो हर तरीके से उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है कि बस प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड रेट, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट राइट है उनका, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, प्रेफरेंस कैपिटल will be written first. Preference capital will be written first. ठीक है. जब कंपनी बंद हो रही है या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से कंपनी को क्या करना पड़ रहा है, उनकी कंपनी शट डाउन करनी पड़ रही है या वाइंड अप करना पड़ रहा है, एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स, सबसे पहले कैपिटल किसको देंगे हम लोग? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. उन्होंने जितना कैपिटल लगाया है, for example they have invested 50 crores in the company as a preference shareholder, then whatever the financial situation of the company, first of all
preference shareholder will get the opportunity and company have to return their money, their investment first and then after to any other. Okay, so preference shareholders have right to receive the capital at the time of winding up of the company in or at a first step. Okay, I'll read the point. On the winding up of the company, they have the right to return the capital before the capital return to the equity shares. Now we will see the features of preference share. Now we will see the features of preference share. Features of preference ठीक है। सबसे पहले इनका फीचर है प्रेफरेंशियल डिविडेंड। प्रेफरेंशियल डिविडेंड they do not have right to vote. Right to claim assets at the time of winding up. Fixed dividend payout. Act as a source of hybrid financing. Okay. Now we will discuss about the features of preference share. What are the features of preference share? First, preferential dividend. First point is preferential dividend. Preference shareholder gets the preference at the time of dividend. यही इनकी सबसे खास बात होती है कि जब भी कंपनी में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो सबसे पहले कौन आएगा लाइन में? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. After that, equity shareholders or any other shareholders will get their dividend. Okay. So first feature is preferential dividend. सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर. सेकेंड वन इज डू नॉट हैव राइट टू वोट. वेरी इंपॉर्टेंट. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी. कल हम लोगों ने और इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा है दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर और एंड दे हैव राइट टू वोट एंड इंटरफेयर इन एनी वर्किंग ऑफ द कंपनी. बट हियर प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव सच राइट. They don't have right to interrupt in the management of the company, to vote in the meeting, to vote and to suggest something to the board of directors of the company. So second feature is they do not have right to vote. Okay. Third feature is right to claim the asset at the time of winding up. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस होता है हमेशा से ही कि वो क्या करे, क्लेम करे असेट के लिए. असेट के लिए क्लेम करना है जितना कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, जितना भी कैपिटल उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो जब भी कंपनी वाइंड अप हो रही है एट दैट टाइम प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम करेंगे भैया हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, सबसे पहले हमें हमारा कैपिटल, आप जो भी असेट बेच रहे हो सबसे पहले हमें हमारा कैपिटल दे दीजिए. लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स में ऐसा नहीं होता है. कंपनी जब वाइंड अप होती है तो सारे डेटर्स क्रेडिटर्स सब निल होने के बाद यदि कुछ बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. बट इट इज़ नॉट सच इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या होता है, प्रेफरेंस मिलता है जब भी कंपनी बंद होने के लिए आ रही है या कंपनी में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं या कुछ भी चल रहा है जिसकी वजह से कंपनी वाइंड अप करना पड़ रहा है,
तो एट दैट टाइम प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या बोलेगा, होगा आई एम द फर्स्ट, आई एम द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, गिव मी प्रेफरेंस टू रिसीव माई कैपिटल whenever you will dissolve your asset. Okay. The third feature is right to claim the asset at the time of winding up. Okay. Fourth feature is fixed dividend payout. प्रेफरेंस शेयर हमेशा से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब भी इसका इन्वेंशन हुआ था कि बाबा प्रेफरेंस शेयर भी एक हमारा कैपिटल हो सकता है जिसके थ्रू हम लोग कैपिटल रेज कर सकते हैं, तभी से इसका डिविडेंड पे आउट क्या रहा है, फिक्स रहा है। जैसे हम लोग कभी लोन ले रहे हैं और लोन हम लोग फ्लक्चुएटिंग रेट पे नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं, फिक्स रेट पे ले रहे हैं। तो एट दैट टाइम हमें लोन कितने पे, फॉर एग्जांपल 15% पे हमने लोन किया है, तो इट इज़ फिक्स रेट। जब तक हमारा लोन रिपेड नहीं होता है तब तक हमें उस पर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पेड करना ही है। उसी तरह से जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें जब डिविडेंड दिया जाता है फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ द कंपनी, वो कितने परसेंट रहता है, फिक्स रहता है। उसका परसेंट कैसा होता है, फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 9% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर, इसका नाम ही क्या है, 9% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इसका नाम ही क्या है, 9% प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब इस पर डिविडेंड कितने परसेंट मिलने वाला है मुझे, 9% फॉर द लॉन्ग लाइफ। इस पर डिविडेंड मुझे कितना मिलने वाला है, 9% फॉर द लॉन्ग लाइफ, जब तक मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूँ तब तक। ठीक है, सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंसिस्ट फिक्स डिविडेंड पे आउट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड पे आउट कैसा होता है, फिक्स होता है। ओके, एंड लास्ट फीचर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ हाइब्रिड फाइनेंसिंग। हाइब्रिड यानी ये एक्चुअली रियल रिसोर्स नहीं होता है, ये फिक्शियस, और हम लोग बोलेंगे फिक्शियस रिसोर्स होता है कि कंपनी, देखिए इन लोगों को कोई राइट तो है नहीं, तो इवन दो दे आर द शेयर होल्डर्स, even though they are the shareholders, but they don't have right to vote, right to interfere in the management of the company, right to suggest to the management of company कि आप ये प्रोजेक्ट लीजिए, ये प्रोजेक्ट मत लीजिए। ये सारे राइट्स कौन एंजॉय कर सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये सारे राइट्स नहीं होते, इसीलिए इसे ये भी क्या कहा जाता है कि ये कौन सा टाइप है, हाइब्रिड फाइनेंसिंग। ये कौन सा टाइप ऑफ फाइनेंस है, हाइब्रिड फाइनेंस। ठीक है, अगेन आई विल रिपीट द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, हर काम में उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। दे डू नॉट हैव राइट टू वोट, क्योंकि पापा आप वोट करोगे ही क्यों, आप कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हो, आपको हर चीज़ के लिए प्रेफरेंस मिल रही है, आपको रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स मिल रहा है, तो आपको राइट कुछ नहीं है। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, यदि कंपनी प्रॉफिट में है तो आप एंजॉय कर रहे हो, लेकिन लॉस में भी है तो यू आर नॉट गोइंग टू सफर एनीथिंग, क्योंकि आपको क्या है, प्रेफरेंस है। सेकेंड, राइट टू क्लेम असेट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद भी हो रही है, कंपनी का क्रूशियल पीरियड भी चल रहा है, एट दैट टाइम ऑल्सो आपको क्या है, प्रेफरेंस है किस चीज़ के लिए, टू क्लेम फॉर दी असेट। ओके, फोर्थ वन इज फिक्स डिविडेंड पे आउट। ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड पे आउट कैसा होता है, फिक्स होता है। लास्ट वन इज एक्ट एज अ सोर्स ऑफ हाइब्रिड फाइनेंसिंग। ठीक है, ये क्या होता है, हाइब्रिड फाइनेंसिंग होता है। एक्चुअली इन लोगों को कोई भी राइट्स नहीं। गॉट इट एवरीवन, राइट डाउन दिस पॉइंट्स, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एग्जाम में आता है आपको राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रेफरेंस शेयर, देन यू आर गोइंग टू राइट द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देयर फीचर्स इन डिटेल। ओके, write it down. Now next we are going to see the types of preference share. Next one is the types of preference share. Types of preference
important, very very important. Here I will draw one chart for you. Here I will draw one chart for you. Cumulative preference share, non-cumulative preference share. Redeemable preference share, non-redeemable preference share. Participating preference share, non-participating preference share. Convertible preference share, non-convertible preference share. ठीक है? Here are the types of preference share. Very important to understand it, that which are the types of preference share. Okay, first one is cumulative, non-cumulative. second मैंने ये चार्ट इसलिए बना के दिया है ताकि एग्जाम में आपको याद रखने के लिए ये सारी चीज़ें इजी हो। नाम सिर्फ 4 है लेकिन टाइप्स कितने हैं? 8 टाइप्स है। कितने टाइप्स हैं हमारे पास? टोटल 8। टोटल कितने टाइप्स हैं? 8 टाइप्स है। लेकिन हमें याद कितने रखना है? सिर्फ 4 नेम्स हमें अच्छे से रिमाइंड करके रखना है, सेट करके रखना है, बिकॉज जो बैलेंस 4 है वो ऑटोमेटिक आपको याद रहने वाले हैं। फर्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, सेकंड इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, थर्ड इज रिडीमेबल, फोर्थ इज नॉन रिडीमेबल, फिफ्थ इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, सिक्स्थ इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, सेवेंथ इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, एट्थ वन इज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ओके, इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन ये टाइप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन है एक एक प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग क्या है। वी विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।